Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। The stories that we are tracking in this edition of Market Mantra: Sensex climbs 290 points following gains in index heavyweights amid persistent foreign fund inflows. Nifty surges 70 points. S&P retains India's sovereign rating at BBB-, says the economy and fiscal position will stabilize and recover from 2021 onwards. And oil prices decline after a rise in crude and fuel stockpiles in the United States. विदेशी फंडों का प्रवाह बने रहने के बीच सूचकांक में शामिल विशाल कंपनियों में तेजी। सेंसेक्स 290 अंक बढ़ा, निफ्टी में 70 अंकों का उछाल आया। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर ही बनाए रखी। कहा कि वर्ष 2021 से अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति में स्थिरता लौटेगी और सुधार आएगा। और अमेरिका में कच्चे तेल और ईंधन के भंडार बढ़ जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। सबसे पहले शेयर बाजार। विदेशी फंडों का प्रवाह बने रहने के बीच इंडेक्स में शामिल विशाल कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और ICICI बैंक में तेजी के बल पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 290 अंकों के उछाल में रहा। दिन में एक समय 34,350 के आज के उच्चतम स्तर को छूने के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कुल 0.86% की तेजी से 290 अंक बढ़कर 34,247 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.69% की तेजी से 70 अंक बढ़कर 10,116 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक 0.81% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.92% का उछाल दर्ज हुआ। The BSE Sensex today surged 290 points following gains in index heavyweights, Reliance Industries, HDFC and ICICI Bank amid persistent foreign fund inflows. After hitting an intraday peak of 34,350, the 30-share benchmark settled 290 points or 0.86% higher at 34,247. Similarly, the NSE Nifty climbed 70 points or 0.69% to 10,116. In the broader market at BSE, mid-cap climbed 0.81% while small-cap surged 0.92%. IndusInd Bank was the top gainer in the Sensex pack, rallying around 8%, followed by Kotak Bank, Reliance Industries, HDFC, Axis Bank and SBI. On the other hand, Hero MotoCorp, Tata Steel, Bajaj Auto and ONGC were among the laggards. Buying in financial stocks led benchmarks higher during the day. Persistent foreign fund inflows also buoyed the market. Provisional exchange data showed foreign institutional investors bought equities worth around 491 crore rupees yesterday. Experts said global investors are awaiting the US Federal Reserve's latest policy outcome for further cues. It will be the first since the US began to reopen and the first since Friday's blockbuster jobs report. AKB, today the market seems to have been led by the financial sector. Yesterday, financial sector was actually dragging it down. So what has changed between yesterday and today for the financial sector? Well, I think the broad sentiment has changed in the sense that driven largely by the interest that the foreign portfolio investors are showing in the Indian market. I think the news that S&P has not downgraded India, unlike what Moody's did, has also helped bio the sentiment. But broadly, it is the foreign investment that is keeping the Indian stock markets in positive territories, and the
overall sentiment of the foreign investor in the Indian stock market will also be clearer after what the Fed Reserve makes its first statements after the reopening of the U.S. known to everybody late in the evening. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसे आपने कहा कि यूएस फेड की जो स्टेटमेंट आने वाली है उसके सब सारे इन्वेस्टर्स उसके इंतजार में हैं, लेकिन अभी तक हमने पिछले कुछ दिनों से 8-10 दिनों से जो एक ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा है फॉरेन फंड्स का भारत में जो प्रवाह बना है, उसके पीछे आपको कारण क्या दिखाई देते हैं? क्या ऐसा है भारतीय बाजार में जो उनको उत्साहित कर रहा है? देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो असेसमेंट रहा है कि जो पिछले कई दिनों के कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद जो शार्प एक इरोजन इन स्टॉक वैल्यू हुई थी, उसके बाद इंडियन स्टॉक्स को उनके लिए और जो एक्सपेंसिव वो जो था वो एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं लगा, तो इसीलिए एक्सपेंसिव न होने के कारण उनकी रिलेटिव इंटरेस्ट थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। पर अब जब दिख रहा है कि एक डिफरेंट एस्टिमेट्स आ रहे हैं, मूडीज भी कह रही है कि अगले साल का ग्रोथ रेट करीबन 8% होगा। S&P ने भी आज बोला है कि अगले साल का जो ग्रोथ रेट 8% होगा। तो एक लॉन्ग टर्म जो सेंटिमेंट जो है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी बरकरार है। इस असेसमेंट में मानता हूं कि थोड़ी बहुत जो मार्केट में एक सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव जारी है इस वक्त। In its commentary, AKB S&P has said that the ongoing economic reforms, if executed well, should keep country's growth rate ahead of peers. So, which are these key economic reforms, in your opinion, which need to be executed well for India to do? Well, I think the most important economic reform, probably the Standard & Poor's and as well as the Moody's are referring to are the price reforms, in a sense that the product price reforms where the government lets the market forces determine what the prices ought to be. The second is the labor market reform. And the third is the trade policy reform, where of late the government has introduced some tariffs which probably undermine the competitiveness of Indian producers. But on the whole, the GST needs further reforms. So there is a host of reform tasks that can be outlined. But I think the critical reform that they are looking at is how the government can come back to the pre-COVID scenario of insolvency and banking board resolution and the GST rationalization. So these are the two reforms which will be very, very critical. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसा आप कह रहे हैं कि प्राइस रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी हमने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हालांकि उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो काफी हाई है। सो एग्रीकल्चर में जो अभी प्राइस रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसमें फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी गई है कि वो मार्केट कर सकते हैं अपने आप, उनको जरूरी नहीं है कि मंडीज के थ्रू जाना है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, ये कितने आपको क्रूशियल लगते हैं कि रूरल इनकम्स इससे उनको कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, तीनों रिफॉर्म को जो आपने जिक्र की वो मैं मानता हूं कि बहुत ही अहम रिफॉर्म्स हैं। अगर आप जो फार्मर्स की जो स्वाधीनता है कि वो मार्केट में जाकर एपीएमसी की मंडी से ही नहीं, जिससे मर्जी वो अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और इस रिफॉर्म से एक फार्मर की जो इनकम लेवल है और एक फ्रीडम जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरी जो है कि वो इंटरस्टेट ट्रेडिंग का जो रिफॉर्म किया गया है, जिससे कि एक प्रदेश का जो किसान अपनी उपज को लेकर वो और एक प्रदेश में जाकर बेच सकता है। ये बॉर्डर के रहते हुए जो किसान जो है वो बहुत इनकी सुविधा होगी। और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
कि उससे जो काफी सारे जो क्रॉप्स हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। उससे जो किसान जो उपज होती है उनकी वो अपनी वेयर हाउस में या स्टोरेज में वो कर सकते हैं। और हालांकि इसमें एक प्राइस क्लॉज है, जो प्राइस क्लॉज अभी भी काफी किसानों को अभी भी एक असुविधा पैदा कर सकती है। पर मैं मानता हूं ऊपरी ओर से देखें, पूरी सामग्रिक रूप से देखें तो मैं मानता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का रिफॉर्म जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक कदम है। इससे इसका अगर क्रियान्वय अगर हम ठीक तरह से करें और इसकी अगर मॉनिटरिंग अगर ठीक तरह से किया जाए, मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ जो हमने 2019-20 में 5.5% देखी, वो एक बहुत बड़ा एक डबलिंग ऑफ ग्रोथ हुआ था 2019-20 में। मैं मानता हूं कि 20-21 में अगर हम इसी ग्रोथ को अगर बरकरार रख सकते हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें जो आप जिस सवाल कर रहे हैं, जो कि रूरल इनकम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पर ये देखना कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा किस तरह से जो एफएमसीजी सेक्टर डिमांड निर्भर करता है। क्योंकि रूरल डिमांड अगर अच्छा हो तो मैं मानता हूं इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाएगा, पर्टिकुलरली रिटेल सेक्टर में जाएगा। तो एग्रीकल्चर इस तरह से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी एक चाबी है, जिस चाबी को आप अगर ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो मैं मानता हूं आर्थिक गति को हम और भी तेज गति दे सकते हैं। AKB, you mentioned the US Fed Reserve meeting later today, of course, later today in the US time. That's something that is being keenly watched across the world and probably will be a big factor even tomorrow's market. What do you anticipate will happen in that Fed Reserve market? I think that there are two issues which are very, very important right now. What at one level the markets will keenly look forward to the interest rate guidance that the Fed gives, that whether a time has come to accept and facilitate the entry into a negative interest zone. That I think will be very, very keenly watched, that what is the Fed Reserve's approach to it, because if the Fed Reserve indicates that a time has come to enter into a negative interest rate regime, then probably the markets will react in a certain way, and what you will see is that the emerging economies will be actually can be expecting more flows into their markets. So that's a very, very key statement that global markets, including those in the emerging economies, will be looking forward to. And the second announcement or the observations of the Fed that will be keenly watched is whether they think that there is more quantitative easing or more liquidity infusion that is required in the economy to prevent the kind of economic slowdown that everybody is fearing in the U.S. economy. So these are the two key areas that the markets, both in the U.S. as well as those in the emerging economies, will be keenly watching. जैसा आपने कहा कि अगर वो इस दिशा में कदम उठाते हैं, फर्दर कट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव टेरिटरी में जा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स, या क्वांटिटेटिव ईजिंग बढ़ाते हैं, तो उसका फंड फ्लोज का तो एक प्रभाव बढ़ेगा ही हमारी तरफ, जैसे आपने इंडिकेट किया है। इसके अलावा क्या भारत में, इमर्जिंग मार्केट्स में और भारत में भी इंटरेस्ट रेट्स फिर और नीचे जाने की एक एनवायरनमेंट बनेगा? किस तरह से अफेक्ट होगा हमारा इकोनॉमिक जो हमारी अर्थनीति का? अच्छा सवाल किया है। हमारी अर्थनीति ऐसे एक डगर में है जहां पे हमें इन्फ्लेशन फोरकास्ट का बहुत बड़ा एक तात्पर्य आ गया है, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पिछली जो मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई नंबर तो नहीं बोला उन्होंने, पर उन्होंने ये कहा कि जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव जोन में जाने की बहुत ज्यादा ही एक पॉसिबिलिटी है। अगर ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव जोन में जाती है, उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि इन्फ्लेशन का रुख क्या है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा नहीं है
तो क्या हम एक ऐसी डिसइन्फ्लेशनरी सिचुएशन में जा रही है अर्थनीति जहां पे इंटरेस्ट रेट को घटाना शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाए। तो मैं समझता हूं कि जो पिछली जो द्विपाक्षिक जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी उसमें इन्फ्लेशन के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया था, क्योंकि कहा गया था कि डेटा अभी भी पूरी तरह से जबरदस्त डेटा अभी तक नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अगली बार की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी उस समय इन्फ्लेशन की जो रुख क्या होगी अगले आधे 6 महीने में या 3 महीने में, मैं समझता हूं उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट को और भी घटाना चाहिए या इसी तरह एकोमोडेटिव रखना चाहिए। चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। विश्व के शेयर बाजार आज 3 महीने के उच्चतम स्तरों के नीचे बने हुए थे और अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले डॉलर में गिरावट का रुख था। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला था। जापान का निकेई सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों 0.2% की वृद्धि में रहे। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% की बढ़त में रहा, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां हल्की गिरावट का रुख था। लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं था। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट चल रही थी और फ्रांस का कैक 0.3% के नुकसान पर था। The US stocks fell yesterday as investors paused ahead of a Federal Reserve meeting that could offer views on the recent signs of economic recovery that drove the tech-heavy Nasdaq to an all-time high in the previous session. The Dow Jones declined 1.1% and the S&P 500 fell 0.8%. However, the Nasdaq Composite ended 0.3% up. AKB, the dollar fell and we saw some nervousness before the Fed decision. What is the linkages between the dollar and the Fed decision that is going to come today? Sorry, I didn't get this last part of the question. What is the linkage between the dollar falling and the Fed Reserve decision that is expected today? Well, the dollar falling is essentially a reflection of the interest rate softening further, because if the interest rates are further going down, then there will be a less demand for dollar in the overall in the foreign exchange markets. So I would imagine that as of now, it seems that if interest rates further go down, then it will dollar will see some further weakening. मिस्टर भट्टाचार्य, पिछले बार जब ये क्राइसिस आया था 2008 में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, तब आर्थिक स्टिमुलस हर एक देश ने बहुत बड़े बड़े आर्थिक स्टिमुलस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में डाले थे, जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन, हमारे देश में भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन का हमें सामना करना पड़ा था। अब क्या लगता है आपको, अब जो आर्थिक स्टिमुलस डाले जा रहे हैं, क्या जो डिमांड में एक कमी आई है कोविड की सिचुएशन की वजह से, वो बैलेंस आउट कर देगी और बहुत हाई इन्फ्लेशन का खतरा शायद अभी नहीं है? क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन का? आपने बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पार्थक्य 2008-9 और आज की में ये है कि उस समय डिमांड की वीकनेस ज्यादा नहीं थी। हालांकि अब जो अवस्था जो है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो गई है। ज्यादातर हम भारत के बारे में तो साफ कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थनीति की जो सबसे ज्यादा समस्या है, बड़ी समस्या है, वो किस तरह से हम मांग को बढ़ा सकें, क्योंकि मांग हमारे अर्थनीति में बहुत कम हो गई है। जो भी आप जिस दिशा में आप देखेंगे वहां पे भी डिमांड बहुत ही दुर्बल हो चुकी है। तो इस डिमांड के दुर्बल हो जाने से मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो कम दिख रहा है इस वक्त, और इसीलिए शायद इंटरेस्ट रेट को घटाना उतना जोखिम भरा नहीं होगा, उतना रिस्की नहीं होगा।
आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का, फिर इस चर्चा को विस्तार देंगे। रुपया आज शुरुआती तेजी के बाद आई मंदी के चलते बिना किसी खास बदलाव के 75.59 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले से पहले निवेशक सतर्क रहे। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार किसी विशेष कारक के अभाव में रुपये का कारोबार सीमित दायरे में हुआ। उन्होंने कहा कि बाजार भागीदार अतिरिक्त संकेतों के लिए उत्सुकता से यूएस फेड के रुख और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भविष्य से जुड़े उनके अनुमान का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, हम रुपए में काफी समय से एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं 75-76 के बीच में, और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी लगभग $500 बिलियन तक पहुंच गए हैं। सो क्या लगता है आपको, इस पूरे जो टर्मोइल जैसी सिचुएशन है उसमें करेंसी में जो स्टेबिलिटी है वो क्या दर्शा रही है? देखिए, जो आप दो चीज हम देख रहे हैं। एक तरफ तो जो हमारी जो विदेशी मुद्रा का जो व्यय होता है उसमें कमी दिख रही है, क्योंकि सारी जो हमारी जो रेमिटेंसेस अब्रॉड के लिए जो है बहुत कमी दिख रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फ्लोज पहले थोड़ा कम हो गए थे, अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। उसी ये दो चीजों से, और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, क्योंकि तेलों के दाम कम हो गए हैं। और जो सर्विस ट्रेड में जो हमारी जो सरप्लस है वो थोड़ी बहुत उसी तरह बरकरार है। तो अगर हम देखेंगे मर्चेंडाइज और सर्विसेज ट्रेड में जो बैलेंस जो पहले जमाने में पिछले 1-2 महीने में पहले जो डेफिसिट होती थी, अब हमें पहली बार दिख रहा है कि अप्रैल के महीने में जो टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड और सर्विस ट्रेड की जो बैलेंस है उसमें हमें एक सरप्लस दिखा है। तो ये तीनों कारणों के कारण, और तेलों के दाम कम है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार वो बढ़ता जा रहा है। और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, जब हमारी पास जो विदेशी जो आपका जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो ज्यादा आ जाता है, अगर वो हमारे पास ज्यादा आ गया है तो उससे इसका जो प्रभाव रुपए के ऊपर होता है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त जो ऑयल और फॉरेन एक्सचेंज डिमांड की जरूरत है, उसमें थोड़ी बहुत जो पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि हम 75 में अटका हुआ है। उसी के लिए जो रुपए में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। हालांकि अगर जनवरी और अप्रैल तक हम देखें उसमें 5% का गिरावट आ गया है, पर अप्रैल के बाद ऐसी 75 में ही ये स्टेबिलाइज हो चुकी है। मैं मानता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ठीक होना और रुपए का एक स्टेबल जगह में पहुंचना, ये दोनों में यही संपर्क दिखता है मुझे। Let's move on to the second major story that we're tracking today. S&P today retained India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook, saying that while risks to growth are rising, the economy and fiscal position will stabilize and begin to recover from 2021 onwards. It said the stable outlook reflects that India's economy will recover following the containment of COVID-19 pandemic, and the country will maintain its sound net external position. S&P also said the stable outlook also assumes that the government's fiscal deficit will recede markedly following a multi-year high in fiscal year 2021. AKB, we saw that the Moody's had downgraded India just last week, and S&P today has maintained the rating, and Fitch came out with a projection today that next year they expect the growth to sharply increase to almost 9.5%, while they had initially projected a degrowth of 5% in this fiscal. What explains the difference between these various rating agencies? Well, you have to recognize that Fitch and S&P had already placed India at the lowest rung of the investment grades. In a sense, in any rating agency, there are investment grades, and in the investment grade, there are various notches and various rungs. And below the last rung of the investment grade starts the junk category, which is very risky investment. Now, before this
outlook of S&P that was released, India was at the lowest rung of the investment category. Now, Moody's, which downgraded India, had placed India at 2 notches above the investment grade, which means right now, after the S&P's rating, both S&P and Moody's have placed India at the same rung of the last grade of the investment category. Now, this is probably a normalization process that has happened. And I think broadly the international rating agencies are in agreement with one, that Indian growth after facing a severe jolt in 2020-21 are expecting a sharp recovery, which is to be expected. But what is important is that both the rating agencies are worried about the government's fiscal stress. In a sense, the government finances will continue to go under some trouble, in the sense that the fiscal deficit will keep widening, and the debt sustainability is also an area of concern for both the rating agencies. So I'm in a sense happy that today the two of the world's top-rated rating agencies are now seeing eye to eye on what India's rating is. Now, this will give some sort of a credibility to the whole rating process, and of course this will have some impact on our investment flows, but the fact that both the agencies are hopeful of India bouncing back to positive growth territory in 2021-2022, and the fact that they are worried about the government finances, I think you get a broader sense of the state of the government finances and the economy. Now let's look at the oil prices. The oil prices today fell after a rise in crude and fuel stockpiles in the United States revived fears about oversupply and falling fuel demand in the world's largest crude consumer amid the coronavirus outbreak. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $40.70 per barrel, while WTI crude prices were at $38.30 per barrel. Low depressed oil prices, AKB, is always good for India, but where do you think this will stabilize over the next 3 months or so? I think, the oil prices, as you rightly said, is good news for India. And how the oil prices will behave in the coming months will largely depend on the pace of recovery of the global economies in a post-COVID-19 world. In a sense, as the global economies are opening up, US has opened up, India is opening up, the demand for oil is coming back, but it is coming back at a very, very slow pace. So till such time, the demand for oil returns to the pre-COVID situation, I don't see the oil prices moving northwards. So you can expect the current modest levels of international crude oil prices to continue till such time the global economy bounce back and creates more demand for crude oil. और अब चलते हैं सोने की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रुख सकारात्मक रहने के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 245 रुपए की वृद्धि से 47,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा, लेकिन चांदी का मूल्य 110 रुपए कम होकर 49,340 रुपए प्रति किलो पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना वृद्धि के साथ $1,720 प्रति आउंस पर था और चांदी $17.70 प्रति आउंस पर थी। विशेषज्ञों के अनुसार सोने के मूल्यों में तेजी थी क्योंकि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों से पहले सतर्क थे। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। प्रोफेसर भट्टाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शामिल नमस्कार। Thank you, AKB. Before we close, a reminder of the headlines. Sensex climbs 290 points following gains in index heavyweights amid persistent foreign fund inflows. Nifty surges 70 points. S&P retains India's sovereign rating at BBB-, says the economy and fiscal position will stabilize and recover from 2021 onwards. And oil prices declined after a rise in crude and fuel stockpiles in the United States. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.
Market Mantra.